Hello everyone, our question is let alpha beta be the roots of the equation x minus a, x minus b is equals to c, where c is not equal to 0. Then the roots of the equation x minus alpha, x minus beta plus c is equal to 0. This we have to find. So first of all, this is equation given, that is x minus a, x minus b is equal to c. So I can write this as by multiplying x square. This will be minus ax minus ax and minus bx, so taking minus and common, this will be a plus b into x plus ab. Shifting this c to the left hand side, so minus c is equal to 0. Now we know that if our equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, then sum of roots is given by minus b upon a, and product of roots is given by c upon a. So applying that thing here, so let the roots given as alpha and beta. So what I will get? Sum of roots means alpha plus beta is b upon a. So minus b upon a. So this is minus plus a plus b. A is equals to 1. So upon a, here a is equals to 1. So this will be a plus b upon 1. And alpha beta, product of root is c upon a. So ab minus c. And here coefficient of x square a, that is 1. Now the roots of this equation we have to find. So x minus alpha, x minus beta plus c is equal to 0. Now multiplying this equation, so I will get x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta plus c is equal to 0. So this is x square minus alpha plus beta is a plus b plus alpha beta is ab minus c plus c is equal to 0. So this is x square minus of ax minus bx plus of ab. This c and c gets cancelled. So from here this is equals to 0. Taking x common, this will be x minus a, and here taking minus b common, so this will also be x minus a is equals to 0. So from here I will get vectors as x minus a and x minus b is equals to 0. So it means its vectors are x is equals to a and x is equals to b. So this is our answer for this question. So now check the options. So it means that this is a comma b. This is a comma b. This C option is correct. This is C option. So this only we have to find in this question. Thank you. See, इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, लेट ABC be the real number and alpha beta are the roots of this equation, then express the roots of this equation in terms of alpha beta. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, इस टर्म के में x का कोफिशिएंट, इस टर्म में माइनस टाइम्स ऑफ x कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर कोफिशिएंट. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई माइनस बी बाई ए. और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी सी बाय ए. ठीक है, और मेरे पास अगली इक्वेशन है ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी ऑफ एक्स प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, मैं इसके रूट्स मान लेता हूँ. इसके रूट्स है गामा एंड डेल्टा. ठीक है, तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आएगी सम ऑफ रूट्स इज माइनस टाइम्स ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, दैट इज ए क्यूब. ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स बी सी अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ बी बाई ए इंटू सी बाय ए. माइनस टाइम्स बी बाई ए की वैल्यू क्या है, माइनस टाइम्स बी बाई ए की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा. तो इसको क्या लिखा जा सकता है, गामा प्लस डेल्टा इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय सी बाई ए इज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है यहाँ का. अगर हम इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे तो गामा डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर आती है, गामा डेल्टा की वैल्यू आती है
इंडिपेंडेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दैट इज सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और सी ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सी बाई ए का होल क्यूब, और सी बाई ए की वैल्यू किसके बराबर है, सी बाई ए की वैल्यू है अल्फा बीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें गामा प्लस डेल्टा यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, गामा प्लस डेल्टा लिखा हुआ दिख रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा एंड प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो अगर इसके अल्फा की गामा की वैल्यू मैं अल्फा स्क्वायर बीटा मान लूँ, गामा की वैल्यू अल्फा प्लस स्क्वायर बीटा मान लूँ, और डेल्टा की वैल्यू बीटा स्क्वायर अल्फा मान लूँ, तो मैं देखता हूँ कि मुझे गामा डेल्टा की प्रोडक्ट भी बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे दो रूट्स क्या हो जाएंगे, मेरे दो रूट्स हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर, ये मेरे दो रूट्स हो जाएंगे इस इक्वेशन के।